Okay, so yesterday we had studied uh, so we had studied about the works which are carried out in an office. Okay, the functions of an office. So today we are going to discuss importance of an office. Okay, so importance of an office. This topic also we had finished. No, information center, evidence of existence, medium of communication, center for formulating plans and policies, coordination, management and control, and service center. We had finished this, and now today we have to Yes, start sir. the types of office. Okay, so on the basis of existence means what? Whether the office is present or not, whether the organization is working or not, है ना, उसका उसका कोई वजूद है कि नहीं, है ना, उसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व है कि नहीं, उसके बेसिस पे ऑफिस दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफिस. द फर्स्ट वन इज परमानेंट और लॉन्ग टर्म ऑफिस. तो जनरली गवर्नमेंट ऑफिसेज आर permanent in nature. Generally the government offices are permanent in nature. When an office is established for an indefinite period of time, it is said to be permanent in nature. So if an office has been established, for an indefinite period of time, like the municipality corporation which is in our locality is established for an indefinite period of time, means it will be in existence till the Bharatva will be there in this world. This office will never be closed down. People will be born, people will die, but no matter, okay, office will continue its operation till the place is in existence. Okay, so it is said to be permanent or long term office, like the municipality corporation, like the Ministry of Finance, like the Ministry of External Affairs, like Home Ministry, like the office of Prime Minister, the office of the President of the country. So these are such offices that can never be closed down, that can never be terminated. So they are said to be permanent in nature or long-term office. And the second type of office is temporary or short-term office, an office which is established for a specific period of time, for 2 months, for 2 years, for 4 years, for 10 years. Some offices are established for a very short period of time. And why such offices are established? Because there is a particular work, or there are a bundle of works which are needed to be carried out, and till the works are not completed, the office does not get terminated, the office does not get closed down. Okay, what do I mean to say? I mean to say there is a piece of work for which the office has been established. Suppose for the development of, or the construction of the ring road around Bharatwa, an office has been established. Okay, and till the time the road is not constructed properly, till the time the road is not completed, the office will be there at that place. But when the road will be constructed fully, the office will be terminated. It is temporary, it is not for all the time, because one day the work of construction of road will be finished, and that day the purpose of office will also be finished, and the office needs to be closed down. So I have written here in your slide, when the work expires for which the office was established, the office is said to be terminated. Office is also terminated. Okay, जब काम खत्म हो जाए, जिसके लिए ऑफिस बनाया गया था, तो ऑफिस को बंद कर दिया जाता है. ऐसे ऑफिस को हम टेम्पररी या फिर शॉर्ट टर्म ऑफिस बोलते हैं. ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, a short term office can further be classified into two broad categories. So short term office can be further classified. Short term office भी दो तरीके का हो सकता है. एक हो सकता है ऑफिस फॉर स्पेसिफिक वर्क और पर्पस, और दूसरा हो सकता है ऑफिस फॉर स्पेसिफिक टाइम. अगर किसी खास काम को करने के लिए ऑफिस को एस्टेब्लिश किया गया है, तो वो हो गया ऑफिस फॉर स्पेसिफिक वर्क और पर्पस. दिस टाइप ऑफ ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सच अ टास्क द ऑफिस गेट्स डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली. ठीक है, क्या होता है, किसी खास काम को करने के लिए ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है, वो ऑफिस भी डिसॉल्व कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है. जैसे मैंने आपको
रिंग रोड के कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया। जैसे ही रिंग रोड का काम खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 2 महीने लगे, ठीक है, या 5 साल लगे, जब भी वो रिंग रोड का काम खत्म होगा ऑफिस बंद कर दिया जाएगा। दूसरा है ऑफिस फॉर स्पेसिफिक टाइम। ये ऑफिस जो है खास टाइम के लिए ही है, मतलब 2 महीने ही खुला रहेगा या 4 महीने ही खुला रहेगा शुरू से ही। ऑफिस इज क्लियर अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। ऑफिस को शुरू से ही पता है कि उसका पर्पस क्या है और वो कितने दिनों के लिए वहां पे है। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप है ना पिलाने के लिए कोई ऑफिस छोटा सा स्टैब्लिश किया गया है ना, ताकि रोज बच्चे वहां जा सके, अलग अलग बच्चे अलग अलग लोकेलिटीज से, और उनको पोलियो ड्रॉप्स अवेलेबल कराया जा सके, दिया जा सके। तो क्या है कि शुरू में ही गवर्नमेंट क्लियर कर देती है कि इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक पोलियो का ड्रॉप पिलाया जा रहा है ना। जिसको जरूरत है वो इतने तारीख से लेके इस तारीख के बीच में एक एक जो टाइम ड्यूरेशन है उस बीच में आपको आना है और पोलियो ड्रॉप लेना है। और जैसे ही ये 2 महीने 3 महीने जितना भी ऑफिस के लिए टाइम दिया गया है, जैसे ही वो टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद उस ऑफिस को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ समस्या ये है कि यहाँ इस ऑफिस को ये मतलब नहीं है कि सारे बच्चों को पोलियो ड्रॉप मिला या नहीं मिला। उसको मतलब इस बात से है कि 2 महीने मैंने ऑफिस खोला, जिनको पोलियो ड्रॉप लेना था वो लिए, जिनको नहीं लेना था वो नहीं लिए। ऑफिस अपने टाइम से क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग on the basis of existence we have just discussed now that there were 2 types of offices. One was short term office, another was long term office. And the short term office was further divided into 2 categories, which was office for a specific purpose and the second one was office for a specific time. Now on the basis of work ownership and purpose, offices can further be categorized as. So this is the second type of categorization where the office is being divided into different types. Okay, तो काम क्या है ऑफिस का, उसका मालिक कौन है ना, उसको बनाने का पर्पस क्या है, उस हिसाब से ऑफिस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस कहने का मतलब सरकारी ऑफिस। ये जो सरकारी ऑफिस होता है इसको ओन यानी इसका मालिक और इसको मैनेज करने वाले सारे जो इंसान होते हैं वो सरकारी आदमी लोग होते हैं, यानी इसको सरकार ही ओन करती है और मैनेज करती है। इट परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल वर्क्स। ऐसे ऑफिसेस का मेन काम क्या होता है कि वो प्रशासनिक और विकास का कार्य देखें। जैसे हेल्थ ऑफिस होता है, पुलिस ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ सीडीओ है, ये सारे एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस के। एक ऐसा ऑफिस विच शैल बी रन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, देन दैट ऑफिस इज सेड टू बी गवर्नमेंट ऑफिस। अब दूसरा है, सॉरी इसके फीचर्स हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस? क्या क्या फीचर होता है गवर्नमेंट ऑफिस का? सबसे पहला कहता है प्रोवाइड्स कम्युनिटी सर्विसेज। ये समाज में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आपके घर चोरी हो गई, आप कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन आपको कोई गुड देता है, कोई कमोडिटी बेचता है? नहीं, वो आपको सर्विसेज रेंडर करता है। वो आपको ही नहीं सबको सर्विसेज रेंडर करेगा, है ना। तो प्रोवाइड्स कम्युनिटी सर्विसेज। सेकेंड नंबर है मेंटेन्स गुड गवर्नेंस इन द कंट्री। ठीक है, देश में अच्छा सरकार बना रहे, अच्छे से जो है लोगों को मैनेज किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तरह तरह के अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस एस्टैब्लिश किए जाते हैं, उनका पर्पस भी अलग है, लेकिन उनका मालिक और उनको मैनेज करने वाले गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही हैं। थर्ड नंबर है डज द वर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। रोड बनाना है, डैम बनाना है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने हैं, यूनिवर्सिटीज को फाउंड करना है। ये सब काम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स, है ना। बेसिक नीड्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है मतलब कंट्री ऐसा है जहां पे लोगों की बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पा रही है। रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास जो है पढ़ने के लिए स्कूल्स नहीं है ना। तो सरकार जो है इस तरह का काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज एस्टैब्लिश करती है, ऑफिसेज बनाती है, स्कूल्स बनाती है। स्कूल भी एक ऑफिस है ही, है ना। उस तरह कॉलेज भी एक ऑफिस है। हाँ, उसका अपना एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग है, क्लासरूम्स अलग हैं, लेकिन वहाँ एक ऑफिस तो है ना, जहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर वो सरकारी स्कूल है तो वो सरकारी ऑफिस है। ठीक है, अगर वो सरकारी कॉलेज है तो वो सरकारी ऑफिस हुआ, है ना। फिर आते हैं थर्ड फोर्थ पॉइंट, रिसीव्स बजट फ्रॉम गवर्नमेंट एनुअली। ऐसे जो ऑफिसेज होते हैं उनको साल भर में सरकार एक बजट देती है, सैंक्शन करती है, पास करती है उसके नाम पे, और फिर वो बजट उस ऑर्गेनाइजेशन के
अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, साल में एक बार ही ऐसा किया जाता है। उसी बजट से उस स्कूल को, उस कॉलेज को, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसको अपना काम साल भर मैनेज करना पड़ता है। अब आते हैं 6 पॉइंट कहता है फॉलोज गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखिए क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेपाल में, उनका एक अलग अकाउंटिंग मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे जितने भी ऑफिसेज हैं विच आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, विच आर गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनको मैनेज और उनका मालिक तो सरकार है ही, है ना, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे क्योंकि वो सरकारी है। ठीक है, अब आते हैं 6 पॉइंट, एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको सरकार इलेक्ट करती है, सरकार चुनती है, सरकार चूज करती है। कैसे करती है? एग्जामिनेशन के थ्रू करती है, इंटरव्यू के थ्रू करती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज कर लेती है, या फिर अगर किसी काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी देती है मान लीजिए, तो भी वो उसके पास्ट वर्क को देख करके दिया जाता है, उसके लिए टेंडर निकाला जाता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना होता है। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इजीली लोगों को काम मिल जाता है वैसे नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अगर किसी टीचर को पढ़ाने का मन है, उसके पास थोड़ा भी क्वालिटी है, तो वो डायरेक्ट हमारे स्कूल में आएगा, एक बार इंटरव्यू देगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सरकार में, सरकारी ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता, सरकारी कॉलेज में या स्कूल में तो ऐसा नहीं होता। उसमें तो एग्जाम होता है, पहले आप एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसको क्वालिफाई करोगे, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उस अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप अपॉइंट होगे, है ना। तो पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, क्योंकि सरकार जो है सबके साथ न्याय करती है ना, तो उसका उसका फर्ज ही यही है कि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, है ना। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अगर देखें तो भाई जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दिख गया रोड पे कि कल्पवृक्ष स्कूल है, वो गया। जिसको पता ही नहीं कि कल्पवृक्ष स्कूल इस एरिया में है, वो तो उसका एग्जाम कभी दे ही नहीं पाएगा, वो तो वहां इंटरव्यू दे ही नहीं पाएगा, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए कहता है कि दूसरा जो ऑफिस है वो बिजनेस ऑफिस है। बिजनेस ऑफिस का काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफिस करती है। तो बिजनेस ऑफिस क्या करता है? बिजनेस ऑफिस इकोनॉमिक एंटिटी है। इकोनॉमिक एंटिटी है मतलब इसका इस इकोनॉमिक एंटिटी है मतलब इसका जो भी वर्क है वो मनी रिलेटेड है। Its main purpose is to earn profit by the satisfying the needs of customer। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे कस्टमर्स को, और प्रॉफिट कमाए। इट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड ओनरशिप। ये भी 3 तरीके का होता है, ठीक है। कैसे, कौन कौन सा होता है? एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है बिजनेस, और एक होता है ओनरशिप। अब देखते हैं ऑफिस विद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है। जहां पे सरकार का पैसा लगा है उसको हम बोलते हैं ऑफिस विद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे सरकार ही काम करती है, सरकार का ही फैक्ट्री है, वहां पे कोई लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन उस कंपनी को एस्टेब्लिश कौन किया है? गवर्नमेंट किया है ना। जैसे नेपाल ऑयल निगम लिमिटेड, ये कंपनी है ना, किसका है? नेपाल सरकार का, ठीक। तो ये ऑफिस विद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल है। जैसे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये क्या है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई जो है लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। इनडायरेक्टली तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई वेलफेयर मोटिव नहीं है। आपके घर में बिजली लगा दी गई, जितना बिल आएगा वो आपको चुकाना पड़ेगा। वो आप जाके वहां रोगे गाओगे कि मैं बिजली बिल नहीं चुका सकता हूँ, तो आपकी भलाई के लिए वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। वो ये बोलेगा कि नहीं भाई बिल तो चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी मतलब उसका काम ही है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी करे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिना मनी के कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो गवर्नमेंट प्लेज मेजर रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑफिस विद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप समझते हैं जो कंपनी को चलाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं टॉप लेवल में होते हैं, ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। इनको सेलेक्ट कौन करता है? सरकार करती है। अब नेक्स्ट इसके फीचर्स देखते हैं। कहता है इसको मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट करता है। नंबर 2, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और लोगों को बेचे। थर्ड,
इंडिपेंडेंट इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितना भी अपना रिकॉर्ड कीपिंग है, बुक कीपिंग है, वो खुद ही देखता है, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ऑडिटर भी सरकारी होगा, कोई प्राइवेट ऑडिटर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे वो सब सरकारी होगा, जो 4th पॉइंट में लिखा है, इट ऑलवेज फॉलोज द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार के बनाए हुए नियम कानून को ये फॉलो करता है, ठीक है, और ये सरकार के द्वारा ही डिजाइन किया हुआ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ऑफिस विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये ऐसे ऑफिस हैं जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का पैसा लगा हुआ है, हमारा, आपका, आपके पापा का, ऐसे लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इन ऑफिसर्स को फंडिंग कहाँ से मिलती है, प्राइवेट इंडिविजुअल से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। जैसे पार्टनरशिप हो गया, सोल ट्रेडिंग हो गया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गए, ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले ऑफिस हैं। और इन सब का कंसेप्ट हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि क्या होता है सोल ट्रेडिंग, क्या होता है पार्टनरशिप, क्या होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या है मल्टीनेशनल कंपनी, क्या है पब्लिक कंपनी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला कहता है ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसको, इसका जो मैनेजमेंट है और इसका जो मालिक है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट लोग होते हैं, ठीक। सेकंड नंबर है रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल एट मिनिमम वेजेस। इनका एक और मेन पर्पस है, इनका क्या काम है कि ये देखिए, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसका मेन मोटिव तो ये है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, एम्स एट मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यानी किसी चीज को बनाने में जितना लागत लग रहा है उसको कम करना, और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। एक प्राइवेट इंडिविजुअल, आप और हम यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो इसके लिए सरकार जब रिक्रूट करती है, लोगों को चुनती है, सरकार कह रहे हैं प्राइवेट लोग जब रिक्रूट करते हैं काम करने के लिए वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम तनख्वाह देके उनको रखा जा सके। सिंपल सा मतलब है, अगर आप किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 लाख रुपए आपको अगर सैलरी मिलती है, तो इसका ये मतलब है कि कम से कम आप 4 लाख रुपए का काम उसके लिए करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे 4 लाख रुपए नहीं कमाएगा तो आपको 2 लाख रुपए कैसे देगा, ठीक है। आपका एक्चुअल वैल्यू तो 4 लाख रुपए है, आप उसको 4 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं, लेकिन आपसे वो क्या कर रहा है, आपको वो मिनिमम पॉसिबल मिनिमम वेज दे रहा है, 2 लाख रुपए। अब आते हैं 5th पॉइंट, 4th पॉइंट, कहता है टेक्स डिसीजन क्विकली। यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत फास्ट लिए जाते हैं। ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह नहीं होता जहाँ पे बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बहुत सारा रूल्स होता है जो फॉलो करना होता है। इनके बहुत शॉर्ट प्रोसीजर्स होते हैं और जो भी ये करते हैं बहुत इंस्टेंटली क्विकली करते हैं, ठीक है। नो रेड टेपिज्म, नो रेड टेपिज्म कहने का मतलब है कि वर्क में किसी तरह का डिले नहीं होता। जब भी आप किसी सरकारी दफ्तर जाएंगे तो आप देखेंगे सरकारी फाइल के ऊपर एक लाल कलर का फीता बंधा हुआ होता है। वो लाल कलर का फीता कभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल में भी नहीं बंधा होता, लेकिन सरकारी ऑफिस में ये होता है। क्यों होता है? वो इस बात का प्रतीक है कि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे कोई भी रेड टेपिज्म नहीं होता। रेड टेपिज्म एक फ्रेज है जिसका ये मतलब है होता है कि काम लेट से होना। काम लेट से क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सरकारी है। तो यहाँ पे कोई भी रेड टेपिज्म नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 3rd नंबर, सर्विस मोटिव ऑफिस। कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट लोगों को सर्विस देने के लिए किया जाता है, जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, एमएनएसटी इंटरनेशनल हो गया, है ना, या फिर माइती नेपाल हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया। इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए नहीं फाउंड किया कि इनको पैसे कमाने थे, बल्कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया ताकि लोगों का भलाई किया जा सके, सर्विस दिया जा सके। इसको ओन करने वाले जरूरी नहीं है कि वो सरकारी लोग हों, प्राइवेट लोग भी ऐसा करते हैं, है ना। जैसे मारवाड़ी लोगों का होता है धर्मशाला, ठीक है, होता है ना, हर जगह पे धर्मशाला वगैरह होता है। तो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके एक बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, उसका कुछ नाम रख देते हैं। अब वहां पे कोई भी रात में अगर जाए तो बेचारा वो ठहर सकता है ना। एक तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया सोसाइटी के लिए। तो कहता है जैसे आपके एरिया में जो लाइब्रेरीज हैं, हेल्थ सेंटर हैं, ये सब सर्विस मोटिव ऑफिस हैं। अब इसके फीचर्स क्या है? इंडिपेंडेंट इन मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग, ये अपना काम खुद देख सकता है, ये अपना मैनेजमेंट खुद देखता है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन
और उसका मालिक दो अलग अलग लोग होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है बिजनेस में, कि अगर मैं युवराज सुवेदी हूं और मेरी कंपनी का नाम मान लीजिए कि स्टार प्रोडक्शंस है, ठीक है, तो भले ही वो मेरी कंपनी है, भले ही मेरा सारा पैसा उसमें लगा हुआ है, लेकिन सरकार की नजर में स्टार प्रोडक्शंस एक अलग इंसान है। स्टार प्रोडक्शन अलग है हमसे। कहने का क्या मतलब है कि कल को अगर स्टार प्रोडक्शन डूब गया, स्टार प्रोडक्शन के नाम पे मैंने बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा है और स्टार प्रोडक्शन डूब गया है ना, तो बैंक मेरे से लोन लेने नहीं आएगा, मेरे से पैसा नहीं मांगेगा। भले वो मेरी कंपनी है, बैंक भी जानता है कि ये युवराज की कंपनी है, तो वो आके ये नहीं बोलेगा कि आप अपना घर बेच दीजिए और इसमें से पैसे चुकाइए, नहीं, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको कानून ने एक अलग इंसान ही माना है, एक अलग दर्जा दे दिया है ना। तो ये जो आपके सर्विस मोटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, कानून के हिसाब से वो अपने मालिक से एक अलग इंसान है। फिर आते हैं थर्ड, मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट कमिटी फॉर्म्ड अंडर रूल्स। तो कि कोई भी जब भी सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जाता है तो इसका प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होता है। इसमें एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई जाती है जो रूल्स को फॉलो करते हुए ये डिसाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करे। इस महीने ब्लड डोनेशन का काम करना है, तो मैनेजमेंट कमिटी बैठ कर ये डिसाइड करेगी कि ब्लड डोनेशन का काम करना है, कहाँ डोनेट करना है ब्लड, किस एरिया में ब्लड की कमी है, वहां पे ब्लड बैंक्स को ब्लड डोनेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट कहता है मैनेजमेंट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। कहता है मैनेजमेंट कमिटी में कौन से लोग होंगे, एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे, है ना। एग्जिस्टिंग मेंबर्स मतलब जो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रहे हैं, उनमें से ही कुछ लोगों को चुना जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू जनरल असेंबली। कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू जनरल असेंबली, मतलब इन लोगों का एक छोटा सा सभा होता है जिसको जनरल असेंबली ये लोग बोलते हैं। वहां पे बैठ के सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डील किया जाता है कि इस साल कितना चैरिटी के थ्रू पैसा मिला, इस साल कितना डोनेशन मिला, दान अनुदान कहाँ कहाँ से मिला, ग्रांट्स कहाँ से मिले, हमारे पास अपने काम से कितना हमको थोड़ा बहुत पैसा जनरेट हुआ, उसको अब हम किस चीज में यूटिलाइज करेंगे, ये सब जो काम है वो डिसाइड करता है जनरल असेंबली। ठीक है, ये एक इनका छोटा सा सभा के जैसा है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको आप देखिए इसमें क्या है कि अगर आप लोग यहाँ जाएंगे अपने क्लासरूम में, है ना, क्लास वर्क में अगर आप जाएंगे तो मैंने बुक भी डाला हुआ है ना, वो बुक आप एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा आपको, ये स्लाइड जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये स्लाइड्स में है यहाँ पे, है ना, ये स्लाइड है आपका, ये जो अभी हम लोग पढ़े जिससे, ठीक है, और किताब का यहाँ पे दिया हुआ है ना, पेज नंबर वाइज दिया हुआ है। जैसे ये पेज नंबर 1 है, ठीक, यहाँ सब आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में जो है रिव्यू है, रिव्यू है मतलब उस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज किया है। ठीक है, पेज नंबर 10 में एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज आप करिएगा। ठीक है, कल आपसे हम पूछेंगे। क्वालिटी खराब नहीं है इमेज की, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलोंग विद द टर्म्स रिलेटेड टू द स्टेटमेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द टर्म बिहाइंड द ब्लैंक इन ईच स्टेटमेंट। जैसे एक दो हम कर देते हैं, जैसे पहला वाला पूछा है, अकॉर्डिंग टू दिस एन ऑफिस इज एन स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे पिक करके यहाँ जो बॉक्स में दिया हुआ है ऑप्शंस उसको फिल करना है। जैसे दिया अकॉर्डिंग टू दिस एन ऑफिस इज ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, तो यहाँ पे दिया हुआ होगा आपको ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ ऑफिस, ये है ट्रेडिशनल कंसेप्ट जे नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर लिखा है इट इज द सेंटर और द फोकल पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको इसके लिए देखना है कि किस
हिसाब से उसको फोकल या वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। थर्ड कहता है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, तो वो बिजनेस ऑफिस है, ई नंबर। तो ऐसे आपको ये एक्सरसाइजेस करने हैं, ठीक है। देखो 2 पेज का एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप लोग दिन भर घर में खाली रहते हैं, इसको करिए और सबमिट करिए। हम एक आप लोग के सामने यहीं पे क्रिएट कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। असाइनमेंट आपके पास कल 9 बजे तक का समय है, ठीक है। कल 9 बजे तक का समय है कि आपको करना है। होल एक्सरसाइज? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते, कितना है ये उसमें, है ना। यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ जब चैप्टर 1 को आप स्लाइड नीचे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लास वर्क में आपको जाना है, ऑफिस प्रैक्टिस, ये दिख रहा है ड्यू लिखा है ना यहाँ पे, ड्यू इतने तारीख को ड्यू है ये, है ना। 11, कल 11 तारीख है इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से। 9 बजे तक आपको देना है। 22 लोगों को ये असाइन हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसका आंसर लिखेंगे आपको इसको फोटो खींचना है, ठीक है। इस पे आपको अपलोड करना है और टर्न इन कर देना है, ठीक है। आपको असाइनमेंट के अंदर जाना है और वहां पे एक ऑप्शन आता है ऊपर टर्न इन, तो आप जैसे Sir, we are not able to see, sir. हाँ व्हाट हैपेंड, देख ही रहा, सर देख ही रहा कुछ है ना। क्यों, हम तो स्क्रीन शेयर किए हुए हैं। अब दिख रहा है। यस सर। देखो आपको क्या करना है, आप जैसे ही अपना क्लास 9 अकाउंटेंसी खोलोगे आपको क्लास वर्क में जाना है, ठीक है। क्लास वर्क में आप जैसे ही जाओगे ऊपर ऑफिस प्रैक्टिस आ रहा होगा और यहाँ ड्यू डेट लिखा होगा, ठीक है। चैप्टर 1 ऑफिस प्रैक्टिस, ड्यू लिखा है जून 11, 9 बजे तक ये ड्यू है, मतलब आपको 9 बजे से पहले इसको सबमिट करना है, उसके बाद ये लेगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आप स्टूडेंट हैं इसलिए आपको वहाँ पहले तो आप असाइनमेंट देख लेंगे आपको क्या मिला है, पेज नंबर 11, 12, 13 में आपको जो होमवर्क दिया है वो करना है, ठीक है। अब आप उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ही आप उसका आंसर अपनी कॉपी पे लिखेंगे उसका फोटो खींच के आपको अटैच करना है, वहां अटैचमेंट का आपको ऑप्शन देगा और आपको क्या करना है, टर्न इन कर देना है। टर्न इन मतलब क्या हुआ कि आप जैसे उसको टर्न इन करेंगे वो मेरे पास आ जाएगा। अभी 0 टर्न इन है, किसी ने नहीं किया है। 22 लोगों को असाइन हुआ है, ये 22 लोग आप लोग क्लास में, सबको ये काम दिया गया है। अब आप जैसे ही इसको टर्न इन करेंगे मेरा यहाँ नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सब लोग इसको करिएगा फिर क्लास एवरीवन। यस सर। ओके दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, ओके, टेक केयर, बाय। बाय बाय सर। Yes, sir.